Today we'll start with the some important points of leadership and change management. As a revision, we will be going through only the important points that is important from the point of view of examination. ठीक है, examination के लिए जो important है, we will be considering only those aspect in leadership. As we all know that the question pattern is going to change, and this time we are expecting a new pattern in ICFI examination. So we have to understand it in a very brief, as well as we need to understand that we have to write. This time we have to write. Not only we will be learning for MCQs. MCQs तो रहेंगे for 30 marks. Apart from that, we will be having questions from different cases, as well as we will be having some broad questions. One or two broad questions of 10 marks. So the broad question will be covering 20 marks. So that is why we have to understand the things in details, all the concepts, and grasp the point briefly. So the first aspect that we will be discussing about the leadership is the leadership theories. No doubt, in leadership and change management, the first and foremost important point to consider is the leadership theories. ये तो normal सी बात है ना, leadership theories तो leadership में सबसे ज़्यादा important है. Leadership means to lead. Now there were different proponents, there were different experts and management theorists who have given different proposals regarding this leadership. The style of leadership, the way of portraying different leadership attitude, the different attributes of a perfect leader and all. So leadership theories, one such was the great man theory, 1840s. It evolved around the 19th century. The great man theory evolved around the mid 19th century. Even though no one was able to identify with any scientific certainty which human characteristic or combination of were responsible for identifying great leaders. Everyone recognized, just as the name suggests, only a man could have the characteristic of a great leader. ये जो ग्रेट मैन थ्योरी है ना, ये ट्रेड थ्योरी के भी पहले है. जैसे हमने ट्रेड थ्योरी से पढ़ा था इन द फर्स्ट सेमेस्टर, वी हैव स्टार्टेड स्टडिंग फ्रॉम द ट्रेड थ्योरी इटसेल्फ, बट ग्रेट मैन थ्योरी उसके पहले ही था. तो ग्रेट मैन थ्योरी एक पहले ही थी कि ये जो है ग्रेट मैन, तो डेफिनेटली ये जो लीडरशिप थ्योरीज है, इट इज पोजेस्ड बाय मैन. ये लीडरशिप थ्योरी क्या बता रही है कि लीडरशिप जो क्वालिटीज है दैट इज पोजेस्ड बाय मैन, माने ग्रेट लीडर्स आर मैन ओनली, आदमी होगा. और लीडरशिप नो डाउट एक इंट्रिंसिक क्वालिटीज है, मतलब वो अंदर की ही क्वालिटी है, राइट. नाउ that simply this theory sees great leaders are those who are destined by birth to become a leader. Furthermore, the belief was that great leaders will rise when confronted with the appropriate situation. The theory was popularized by Thomas Carlyle, a writer and teacher. Just like him, the great man theory was inspired by the study of influential heroes. In his book on heroes, hero worship and the heroic in history, he compared a wide array of heroes. इन्होंने पूरी बुक लिखी थी जहाँ पे सारे हीरोज थे, मतलब लीडरशिप के हिसाब से आप बोल सकते हो. जैसे अभी हमारे हीरोज हैं कुछ कुछ पॉलिटिकल, उसमें हम लोग भी पढ़ते हैं, जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तो वो एक मतलब इन्फ्लुएंशियल लीडर थे, तो अभी भी हम लोग उनको रेस्पेक्ट देते हैं. तो क्या है, तो ग्रेट मैन थ्योरी, तो उस हिसाब से उस टाइम में थॉमस कार्लर ने कुछ बुक्स लिखी थी ऑन हीरोज या हीरो वर्शिप, इस तरीके से, जिसमें वो हीरोइक हिस्ट्री अपने वहाँ के वो हीरोज के बारे में लिखते थे और कैसे उनके लीडरशिप स्टाइल थे उसके बारे में. और ग्रेट मैन थ्योरी एक ये चीज भी पोर्ट्रे कर रही है कि एक ग्रेट हीरो होने के लिए या एक लीडर होने के लिए उनको वो एक एप्रोप्रिएट सिचुएशन होने की जरूरत होती है. वो सिचुएशन में ही कोई बन के एक लीडर बन के आएगा. In 1860, Herbert Spencer, an English philosopher, disputed the great man theory by affirming that these heroes are simply the product of their times and their actions, the results of social condition. अब 1860 में हर्बर्ट स्पेंसर ने क्या बताया उसको, वो एक इंग्लिश फिलोसोफर थे, उन्होंने इस ग्रेट मैन, जो थॉमस कार्लर ने ये ग्रेट मैन थ्योरी दी थी, इसको फिर क्या बोलते हैं, एक डेब्यूट में आ गया. इसमें डेब्यूट में डिबेट में क्या था इसमें कि हीरोज जो है दे आर सिंपली द प्रोडक्ट ऑफ देयर टाइम्स एंड देयर एक्शंस.
एंड द रिजल्ट्स ऑफ सोशल कंडीशन, मतलब अगर किसी को कोई लीडर है, कोई एक बहुत बड़ा लीडर है और बहुत हीरो, मतलब क्या बोलते हैं उसको, हीरो के रूप में हम लोग देख रहे हैं, मतलब बहुत रेस्पेक्ट कर रहे हैं हीरो टाइप का, तो वो इस वजह से है क्योंकि एक तो उस टाइम में ऐसे कंडीशंस थे, वो सोशल कंडीशंस, मतलब इट इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ लॉट मोर थिंग्स। अब नेताजी की बात जैसे मैंने की, तो नेताजी क्यों बने, क्योंकि उन्होंने वो कंडीशन एक देखी जहाँ पे इंडियंस के ऊपर अत्याचार होता था, एक ब्रिटिशर्स का रूल था, एक सोशल कंडीशन था जो उनके माइंड पे इम्पैक्ट किया। तो इस तरीके का ही एक लीडर जो है या एक हीरो जो है, वो जो बॉर्न हो रहा है, तो इन्फ्लुएंशियल मैंने कुछ चीजें होती हैं उनके लाइफ में, जो सोशल कंडीशंस है, ये सारी चीजों का इम्पैक्ट मिलके वो एक हीरो बन रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से ग्रेट मैन थ्योरी को फिर डिबेट में लाया गया, या उसके क्या बोलते हैं उसको क्वेश्चन किया गया। देखो हर एक थ्योरी आती है, फिर उसको फिर धीरे धीरे अगर वो एकदम जस्टिफाइबल नहीं होगी, तो सबसे पुरानी थ्योरी है तो डेफिनेटली थॉमस कार्लाइल ने पहले एक थ्योरी लिखी थी, उसके पहले तो उतनी थ्योरी हम नहीं जानते, हम तो ट्रेड थ्योरी से ही जानते थे। तो ग्रेटमैन थ्योरी के बाद फिर जैसे जैसे डिफरेंट प्रोपोनेंट्स आते गए, मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स आते गए, दे कम अप विद देयर ओन व्यूज। तो जितने थ्योरिस्ट आते जाएंगे डेफिनेटली दे विल कम अप विद देयर ओन व्यूज एंड एक्सपर्टीज। तो वो पुराने को क्वेश्चन डेफिनेटली करेंगे, जब नया कुछ आता है तो पुराने को वो क्वेश्चन करता ही है। पुराने एजम्पशंस जो हैं उसको क्वेश्चंस करके ही आप नए पे काम करते हो, राइट। अब इसके बाद आया जैसे ट्रेड थ्योरी। ट्रेड थ्योरी का टाइम फ्रेम देखो 1930s to 1940। The trade leadership theories believe that people are either born or are made with certain qualities that will make them excel in leadership roles. अब ट्रेड थ्योरी भी कुछ हद तक बोल रहा है कि दे आर बॉर्न, मतलब ये इंट्रिंसिक क्वालिटीज है, और बाई बॉर्न है या डेस्टाइन, जैसे मैंने कहा तो बाई बॉर्न ये क्वालिटीज हैं। दैट इज सर्टेन क्वालिटीज सच एज इंटेलिजेंस, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्रिएटिविटी एंड अदर वैल्यूज पुट्स एनीवन इन द शूज ऑफ अ गुड लीडर। मतलब ये सारी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो अगर किसी के अंदर भी रहेगा तो वो एक अच्छा लीडर बन सकता है। In fact, Gordon Allport, an American psychologist, identified almost 18,000 English personality relevant terms. अब इन्होंने गॉर्डन एल्पोर्ट ने, जो एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने अराउंड 18,000 इंग्लिश पर्सनालिटी रेलिवेंट टर्म्स निकाले, मतलब पर्सनालिटी से रिलेटेड टर्म्स 18,000 रिलेटेड टर्म्स उन्होंने ड्रॉ की। The trait theory of leadership focused on analyzing mental, physical, and social characteristics in order to gain more understanding of what is the characteristic or the combination of characteristics that are common among leaders. अब ट्रेड थ्योरी ने क्या किया, ट्रेड थ्योरी ने कुछ कैरेक्टरिस्टिक को मतलब एक लिस्ट बनाई कि ये फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, ये मेंटल कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, ये सोशल कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। और वो फिर कुछ कॉमन लीडर्स से उन्होंने, जैसे कुछ कॉमन लीडर्स को मैं जाकर क्वेश्चंस कर रही हूँ, इंटरव्यू कर रही हूँ कि आपके अंदर, मैंने उनके अंदर मैं आई एम ट्राइंग टू इन्फर कि भाई जो ग्रेट लीडर्स हैं, जैसे मैं 5-10 लीडर्स के पास गई, उनके उनके पास जाकर मैं कुछ इंटरव्यू कर रही हूँ, उनसे इंटरेक्शन कर रही हूँ, सो दैट आई कैन इन्फर कि उनके मेंटल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, या फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, या सोशल कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो जब मैं डिफरेंट लोगों से बात कर रही हूँ, ग्रेट लीडर्स से मैं बात कर रही हूँ, तो मुझे पता चल रहा है कि उनके अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि कॉमन है। अब कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक तो आपको मिल ही जाएगा, कुछ मेंटल हो या फिजिकल हो या सोशल कैरेक्टरिस्टिक हो, that will be common in different leaders, right? There are many shortfalls with the trait leadership theory. However, from a psychology of personalities approach, Gordon Allport studies are among the first ones and have brought for the study of leadership, the behavioral approach. अब गॉर्डन एल्पोर्ट की स्टडी जो है वो ऑलमोस्ट फर्स्ट थी इस टाइम में साइकोलॉजी के हिसाब से लीडरशिप में, and for the study of leadership, the behavioral approach. In the 1930s, the field of psychometrics was in its early years. Psychometrics जो अभी हम लोग जानते हैं, अभी तो काफी कॉमन हो चुका है, उस टाइम एकदम स्टार्टिंग पॉइंट था। Personality traits measurement weren't reliable across studies. Study samples were of low-level managers. Explanations weren't offered as to the relations between each characteristic and its impact on leadership. उस टाइम में जो एल्बर्ट की स्टडीज हुई थी उसके बारे में यहाँ पर मतलब क्या क्या एक ड्रॉबैक था उस स्टडीज की, क्योंकि बहुत अर्लियर वर्जन थी ना ये सारी स्टडीज की, तो डेफिनेटली वहाँ पे बहुत सारे ड्रॉबैक्स होंगे।
एक्सप्लेनेशंस वेयर एंड ऑफर्ड, मतलब उस टाइम जो स्टडी की गई थी, एक तो पर्सनालिटी ट्रेट्स के जो मेजरमेंट क्राइटेरिया थे वो रिलायबल नहीं थे, फिर स्टडी सैंपल भी बहुत लो थे, मीन्स वेयर ऑफ लो लेवल मैनेजर्स, लीडर्स नहीं थे प्रॉपर, और एक्सप्लेनेशन नहीं था कि एक कैरेक्टरिस्टिक अगर है तुम्हारे अंदर, अगर ये कैरेक्टरिस्टिक है तो उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है लीडरशिप में। डेफिनेटली जो लीडर्स हैं, देयर आर डिफरेंट लीडर्स, अब उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, उस कैरेक्टरिस्टिक्स का लीडरशिप के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो रहा है, ये समझ नहीं आ रहा था। The context of the leaders wasn't considered. Many studies have analyzed the traits among existing leaders in the hope of uncovering those responsible for one's leadership abilities. In vain, the only characteristics that were identified among these individuals were those that were slightly taller and slightly more intelligent. तो एक क्या बोलते हो, एक वेग टाइप का एक एग्जाम्पशन सामने आया, ये रिजल्ट सामने आया, क्योंकि जो स्टडीज हुई थी, स्टडीज कंडक्ट की गई थी, जो क्वेश्चनर्स डेवलप किए गए या इंटरव्यूज हुआ डिफरेंट लीडर्स में, तो गॉर्डन एल्पोर्ट ने जो स्टडी कंडक्ट की, उन्होंने कोशिश अच्छी की, बट क्योंकि इनिशियल डेज में था तो वहां पे देखा गया कि पर्सनालिटी ट्रेट्स जो मेजरमेंट थे वो अच्छे नहीं थे, वो ठीक ठाक नहीं थे। फिर जो एक्सप्लेनेशन कुछ था नहीं, ये जो डिफरेंट लीडर्स के कैरेक्टरिस्टिक हैं, उन लीडर्स का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं था कि अगर इसके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक है तो उसका इम्पैक्ट क्या है, लीडरशिप में क्या इम्पैक्ट है, वो नहीं समझ में आ रहा था। कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लीडर भी समझ नहीं आया था, लेकिन फाइनली एक चीज समझ में आई कि जितने भी लीडर्स थे वो थोड़ा लंबे थे, स्लाइटली टॉलर एंड स्लाइटली मोर इंटेलिजेंट। तो ये एक ऑलमोस्ट समझ सकते हो एक वेग टाइप का रिजल्ट सामने आया, उतना ज़्यादा अच्छा समझ में नहीं आया। तो अभी तक हमने जो ग्रेट मैन थ्योरी देखा या ट्रेड थ्योरी देखा, ट्रेड थ्योरी भी ट्रेड के ऊपर ही फोकस कर रही थी, तो ये ट्रेड सामने आया कि दे वर स्लाइटली टॉलर एंड मोर इंटेलिजेंट। तो डेफिनेटली दैट वे ऑल्सो नॉट वेरी ट्रू, क्योंकि ट्रेड थ्योरी में हमने और भी पढ़ा है कि बहुत कुछ लंबे लोग नहीं हैं, नाटे हैं, या बहुत स्मार्ट नहीं है, फिर भी वो बहुत अच्छे लीडर बन के आए। ठीक है, ये भी एक हमने देखा है। अभी देखो, अब हम आ जाते हैं बिहेवियरल थ्योरीज में। 1940 से 1950 का टाइम देखो, टाइम फ्रेम। In reaction to the trait theory, trait leadership theory, the behavioral theories are offering a new perspective, one that focuses on the behaviors of the leaders as opposed to their mental, physical or social characteristics. अब बिहेवियरल थ्योरी किस चीज को लेकर है? बिहेवियरल थ्योरी सिंपल सी बातें फोकस कर रही है। पहले क्या था हमारा, अभी तक जो हमने थ्योरीज देखा उसमें क्या फोकस था हमारा, कि कुछ फिजिकल या मेंटल कुछ ट्रेट होगा, तो तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम बहुत लंबे हो, बहुत स्मार्ट हो, बहुत स्टाउट हो, इस तरह, मतलब कोई फिजिकल या मेंटल ट्रेट या सोशल ट्रेट, एक कैरेक्टरिस्टिक। बट बिहेवियरल थ्योरी ना उस चीज से हट के फोकस किया, और बिहेवियरल थ्योरी बहुत हद तक प्रैक्टिकल भी है। मतलब पहले जो हमने वो ग्रेट मैन थ्योरी या ट्रेड थ्योरी ये सब जो पढ़ा, ये एकदम इनिशियल फेज की लीडरशिप थ्योरीज थी। तो एज सच मीन्स इनिशियल डेज में दे वर सक्सेसफुल बिकॉज कोई था नहीं, बट उसमें बहुत डिबेट हुए, क्वेश्चंस हुए, तो बिहेवियरल थ्योरी वे आर मोर सक्सेसफुल, क्योंकि यहाँ पे हम लीडरशिप के जो माने लीडरशिप के जो क्वालिटीज हैं या पैरामीटर्स हैं उसको हम देखते हैं बिहेवियरल पॉइंट ऑफ व्यू से, ना कि मेंटल और फिजिकल। मतलब आप कितना जानते हो, आपके अंदर क्या स्किल है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे बिहेव करें, आपका जो बिहेवियरल एट्रीब्यूट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Thus, with the evolution in psychometrics, notably the factor analysis, researchers were able to measure the cause and effect relationship of specific human behaviors from leaders. From this point forward, anyone with the right conditioning could have access to the once before elite club of naturally gifted leaders. In other words, leaders are not made, not born. यहाँ पर देखो, यहाँ पर बता रहे हैं कि लीडर्स जो है कोई बॉन्ड लीडर्स होगा या उनके इंट्रिंसिक क्वालिटीज ही लीडरशिप वाली होगी, डेस्टाइंड होगा, ये सारे चीज को क्वेश्चन किया है, वो सारी चीज को गलत बताया गया है। क्योंकि बिहेवियरल थ्योरीज क्या फोकस कर रहा है कि आप किस तरीके से, बिहेवियरल मतलब क्या होता है हमें पता है, बिहेवियरल मतलब हमारा जो एट्रीब्यूट, हम बाहर किस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मेरा जो बाहरी एक मतलब क्या बोलते हैं बाहरी स्वरूप, मैं बाहर किस तरीके से अपने आप को पोर्ट्रे कर रही हूँ,
लोगों से किस तरीके से, क्योंकि देखो ये सारी चीजें जो है ना आउटवर्ड, इंटरनल इज समथिंग मतलब विच एवरीवन कुड नॉट सी, बट हाँ इंटरनल का तो एक्सटर्नल पे इम्पैक्ट होगा ही, क्योंकि हम जैसे सोच रहे हैं वैसे ही हम कर रहे हैं। बट हमारे सिर्फ सोचने पे काम नहीं होगा, हमारा जो बिहेवियरल एट्रीब्यूट है, हम कैसे सो कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, कैसे काम करवा रहे हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए बिहेवियरल थ्योरी ज़्यादा सक्सेसफुल रहा, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि लीडर्स आर मेड एंड नॉट बॉर्न। लीडर्स मतलब बॉर्न या डेस्टाइन लीडरशिप रहेगी ऐसा ज़रूरी नहीं है, वो बनते हैं। अभी आप लीडरशिप की थ्योरीज पढ़ते हो, लीडरशिप क्वालिटीज अपने अंदर लाते हो, और कितने सारे लीडर्स हैं, अब अभी देखो बहुत सारे लीडर्स हैं। तो लीडर्स तो डेफिनेटली सिर्फ बॉर्न अगर लीडर्स होते तो इतने सारे लीडर्स नहीं होते। The behavioral theories first divided leaders into two categories, those that were concerned with the task and those concerned with the people. अब ये थ्योरीज हमने जैसे पहले पढ़ी है फर्स्ट सेमेस्टर में, तो फिर भी एक बार बता दे रही हूँ। लीडरशिप, ये जो बिहेवियरल थ्योरी है, बिहेवियरल थ्योरी ने क्या किया, लीडरशिप को जो दो पैरामीटर्स में डिवाइड किया है, क्योंकि जैसे मैनेजर्स को हम डिवाइड करते हैं वैसे लीडर्स को भी डिवाइड करते हैं, क्योंकि एज अ लीडर यू हैव टू पैरामीटर्स टू स्टडी। क्या पैरामीटर्स हैं? वन इज पीपल, अनदर इज योर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन या टास्क में बोल सकते हो। तो दो पैरामीटर को ही स्टडी करना, बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वन इज पीपल, देखो पीपल मैनेजमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वाइटल रोल, ठीक है। और दूसरा हो गया आपका प्रोडक्शन और दी टास्क। तो यहाँ पे मैनेजरियल ग्रिड मॉडल या लीडरशिप ग्रिड जो हमने एकदम पहले ही पढ़ा है, लीडरशिप ग्रिड पढ़ा है ना, और रोल थ्योरी, तो ये सारी थ्योरी हम पहले पढ़ चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बिहेवियरल थ्योरी के बाद आया कॉन्टिजेंसी थ्योरी 1960s। कॉन्टिजेंसी थ्योरी क्या बता रहा है? आर्ग्यूड दैट देयर इज नो सिंगल वे ऑफ लीडिंग। कॉन्टिजेंसी सिचुएशनल, सीधी सी बात है सिचुएशनल। ये अब देखो धीरे धीरे जो थ्योरीज है वो डेवलप हो रही है, क्योंकि पहले जो था एक स्पेसिफिक बताया जा रहा था कि लीडर होने के लिए ये कैरेक्टर होना चाहिए, लीडर बॉर्न ही होगा। लीडर के अंदर पहले तो बताया गया कि मैन, लीडर्स मींस मैन, इट हैज टू बी, ही हैज टू बी अ मैन। वुमेन के बारे में तो बताया ही नहीं गया। तो उसके बाद बताया गया कि लीडरशिप क्वालिटीज आर बॉर्न नॉट मेड, इस तरीके का। अब यहाँ पे फोकस किया हमने बिहेवियर के ऊपर। इसके बाद और थोड़ा सा डेवलपमेंट जब हुआ तो कॉन्टिजेंसी थ्योरीज आई। कॉन्टिजेंसी क्या बता रही है कि लीडरशिप का कोई स्पेसिफिक एक पैटर्न नहीं है कि हम इस पैटर्न में ही लीडरशिप करेंगे या इस पैटर्न में ही हम काम करेंगे, ठीक है। तो अभी क्या हो गया हमारा लीडरशिप का जो बता रहा है कि लीडरशिप डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। कौन से सिचुएशन है, किस सिचुएशन में हम मतलब क्या बोलते हैं, जिस सिचुएशन में है उसके हिसाब से अपनी लीडरशिप क्वालिटीज को हमें ये करना है। To a certain extent, contingency leadership theories are an extension of the trait theory, in the sense that human traits are related to the situation in which the leaders exercise their leadership. It is generally accepted within the contingency theories that leaders are more likely to express their leadership when they feel that their followers will be responsive. एक ये भी बताया जा रहा है कि कॉन्टिजेंसी लीडरशिप जो है ना वो ट्रेट को फॉलो कर रहा है, क्योंकि कौन सी सिचुएशन में कैसा लीडरशिप फॉलो करना है, कैसा हमको स्टाइल फॉलो करना है, वो डिपेंड करेगा ऑन द फॉलोअर्स। लीडर्स तो डिपेंडेंट है फॉलोअर्स के ऊपर। इसको एक्सेप्टेंस थ्योरी बोलते हैं हम लोग, कि अगर आप मुझे मतलब एज अ लीडर, एक लीडर है, एक लीडर को अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हो, मैंने उसको बोलते हैं एक्सेप्टेंस थ्योरी। तो अगर एक फॉलोअर लीडर को एक्सेप्ट कर रहा है तो ही हम मतलब वो अपनी बात मना सकता है या बोल सकता है। सो लीडरशिप थ्योरीज टू सम एक्सटेंट, नॉट टू सम एक्सटेंट, मैक्सिमम एक्सटेंट बोल सकती हूँ, इट डिपेंड्स ऑन द फॉलोअर्स, ठीक है। अब हम आ जाते हैं हार्सी ब्लैंचर सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जैसे हमने इसको पहले भी पढ़ा है। लीडरशिप जो है ये दो चीज के ऊपर डिपेंड करती है। एक लीडर, जो हमारे लीडरशिप थ्योरीज हैं या लीडरशिप जो स्टाइल है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा? दो चीज। एक लीडर क्या फॉलो करेगा, एक हो गई मेरी लीडरशिप, जैसे मैं अगर एक लीडर हूँ, एक हो गई मेरी लीडरशिप स्टाइल और दूसरी हो गई मेच्योरिटी लेवल ऑफ दोज बीइंग लेड, मतलब मेरे फॉलोअर्स जो हैं उनकी मेच्योरिटी लेवल। देखो आप इसको ऐसे भी, मैं साधारण एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझा रही हूँ। जैसे मेरे स्टूडेंट्स जैसे हैं, तो स्टूडेंट्स हर सेमेस्टर में अलग अलग लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं।
फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत क्लासेस देनी होती है, सेकेंड सेमेस्टर में थोड़ा कम, तो हमारी क्लासेस की जो नंबर्स हैं वो कमती जाती है क्योंकि मेच्योरिटी लेवल स्टूडेंट्स की बढ़ती जाती है, होता है ना ऐसा। तो इसे क्या, मेच्योरिटी लेवल जैसे जैसे स्टूडेंट्स की बढ़ती है वैसे वैसे मेरा भी जो इन्वॉल्वमेंट है वो कम हो जाता है। तो वैसे ही लीडर्स का होता है। पहले क्या होता है, देखो फर्स्ट लेवल जिसको टेलिंग बोलते हैं, टेलिंग मतलब इस टाइम में बिल्कुल जो लीडर्स हैं एकदम न्यू कमर्स हैं या उस हिसाब से वो एकदम समझ नहीं पाए हैं, तो लीडर्स का स्टाइल क्या होता है, पूरी तरह से बिहेवियर को इनग्रेन करना उनके अंदर, वो एकदम यूनिडायरेक्शनल होता है। टेलिंग बिहेवियर सिंपली यूनिडायरेक्शनल, वहां पे पूरा एकदम बताया जाता है हर एक चीज, एक एक काम मैं बता रही हूँ, डू दिस टास्क इन दिस मैनर और वॉट एवर, तो ये हो गया टेलिंग स्टाइल। क्योंकि एकदम जो अब बोल सकते हो नए हैं लीडर्स, ये फॉलोअर्स मेरे, so transactional leadership technique operate here. In the selling behavior, the leader attempts to convince the group of that the leader should lead by providing social and emotional support. अब सेकेंड स्टेज में क्या होता है, सेलिंग आ जाती है। सेलिंग में क्या हो रहा है कि लीडर जो है वो कोशिश कर रहा है ग्रुप को कन्विंस करने का, क्योंकि मेच्योरिटी लेवल थोड़ी हो गई है, तो यहाँ पर कन्विंस करके काम को करवाना है। देयर इज अ टू वे कम्युनिकेशन। टेलिंग में जैसे यूनिडायरेक्शनल था, मैं बोलती गई तुम सुनते गए। सेलिंग में मैं भी बोल रही हूँ तुम भी बोल रहे हो, क्योंकि वहां पे कन्विंसिंग एक पैटर्न होने की जरूरत है। ठीक है। नाउ इसके बाद होता है विद द पार्टिसिपेटिंग बिहेवियर, द लीडर शेयर्स डिसीजन मेकिंग विद द ग्रुप्स, मेकिंग द सिस्टम मोर डेमोक्रेटिक। अब पार्टिसिपेटिंग डेफिनेटली समझ रहे हो कि यहाँ पर जो कंटेनर है वहाँ पे मेच्योरिटी लेवल बढ़ती जा रही है हमारे फॉलोअर्स के, है ना, तो वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो लीडर शेयर्स डिसीजन मेकिंग, यहाँ पर डिसीजन मेकिंग शेयर हो रही है, तो यहाँ पर डेफिनेटली लीडर्स को ज्यादा घुसना नहीं होता, ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना पड़ता। There's less of an emphasis on accomplishing an objective than building human relations. Fourth type of leadership style is delegating. काम दे दो, काम अपने आप हो जाएगा. The leader still is charged, but there is more of an emphasis on monitoring than once delegated with the task. यहाँ पे काम कैसे करना है, क्या करना है बताना नहीं होता, काम दे दिया, जस्ट मैं मॉनिटर कर रही हूँ एज अ लीडर। ठीक है। This is one such very important leadership theories. Four maturity levels of the groups are posited by the Hersey and Blanchard with letter designation. अब देखो यहाँ मेच्योरिटी लेवल के बारे में बताया गया है कि जो हमारे फॉलोअर्स हैं उनकी मेच्योरिटी लेवल कैसे कैसे होती है। M1, M2, M3 and M4. M1 basic incompetency or willingness in doing the task. M2 inability to do the task but willing to do so. फर्स्ट लेवल में क्या एकदम कुछ नहीं जानते और ना करने की इच्छा, इसीलिए टेलिंग वाला आता है यहाँ पर। सेकेंड स्टेज में देखो इनएबिलिटी टू डू द टास्क बट विलिंग टू डू सो, यहाँ पे वो करना चाह रहे हैं बट कर नहीं पा रहे। थर्ड स्टेज में कॉम्पिटेंट टू डू बट डू नॉट थिंक दे कैन, यहाँ करने में सक्षम है, वो जान गए हैं बट वो उनको उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, इसलिए पार्टिसिपेशन आ जाती है। एंड फोर्थ इज द एकदम ग्रुप इज रेडी, विलिंग एंड एबल टू डू द टास्क, इस वजह से यहाँ पे डेलीगेशन इज sufficient. So a person with an overall maturity level of M3 might be only an M1 with respect to specific work. According to Hersey, ability level and willingness to do work can be cultivated by good leader by raising the level of expectation. Blanchard's overlays four permutation of competency commitment again with a letter designation. अब देखो D1 है low competency and low commitment. ये जैसे हम लोग क्वाड्रेंट बनाते हैं ना, 4 क्वाड्रेंट, उसके बराबर एक क्वाड्रेंट है लो कॉम्पिटेंसी लो कमिटमेंट, दूसरा कॉम्पिटेंट हो गया लो कॉम्पिटेंसी हाई कमिटमेंट। जैसे हम इसको ड्रॉ करेंगे ना, अगर मैं इसको ये देखो यहाँ पर अगर ऐसे यहाँ पर ये जो बता रहा है ना, देखो फर्स्ट D1 में बता रहा है, जैसे मैं इसको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ले रही हूँ, ठीक है, और चलो इसको मैं कॉम्पिटेंसीज और ये कमिटमेंट लेवल ले लेती हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो लो कॉम्पिटेंसी एंड लो कमिटमेंट, तो ये वाला हो गया बेसिक इनकॉम्पिटेंसी और इनविलिंग, ये M1 वाला हो गया कैटेगरी। D1 जो है वो M1 वाली कैटेगरी हो गया। लो कॉम्पिटेंसी हाई कमिटमेंट, तो यहाँ कॉम्पिटेंसी लेवल लो है, ठीक है, बट हाई कमिटमेंट, तो ये वाला हो गया, मैं इसको ले रही हूँ M2। इनएबिलिटी टू डू द टास्क बट विलिंगनेस टू डू सो। इस तरीके से हम लोग क्वाड्रेंट को बनाते हैं, ठीक है, M1, M2, M3 एंड M4।
M3 हो गया, M4 हो गया, इस तरीके से। तो ये डिफरेंट मतलब क्वाड्रेंट के रूप में दिखा रहा है हर्ट्ज ब्लैंचेट का, ये हमने किया हुआ ये सब। अब आता वीरॉम एंड येटन डिसीजन स्टाइल। आज